Hello, Namaste, Sat Shri Akal. This is your host Sneha Singh, and we are back with yet another episode of Health Humsafar, a podcast series by Jain Hospital in association with Arco Healthcare. And today's episode has been specially dedicated to all the beautiful women out there. और आज हमारे पास आई है Dr. Jyotika Sharma, who's a very well-renowned gynecologist. I welcome you to our show, ma'am. Thank you so much for having me on your show. It's a pleasure. Ma'am, before we start the formal conversation, if I talk about menstruation, although लोग बहुत ज़्यादा वोकल हो गए हैं मेंस्ट्रुएशन को लेकर, स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट हो गए, बट आई स्टिल फील मोस्टली इन द रूरल एरियाज अभी भी इट्स स्टिल कंसिडर्ड एज अ टैबू. लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं कर रहे हैं या लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है इस कॉन्सेप्ट को लेकर. I think this podcast series will definitely help. And आजकल अगर हम देखें पहले से काफ़ी चेंज आ गया है. इस टॉपिक पर डिस्कशन होने लगा है थ्रू टेलीविजन, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, आई होप. Right, absolutely. Ma'am, puberty, जब when a girl hits puberty, बहुत सारे bodily changes आते हैं उसके अंदर जिसके बारे में उसे पता नहीं होता. तो लड़कियां यूजुअली, अगर मैं अपने बारे में बात करूं, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूं, तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं when we hit puberty और when we experience our first period. तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में हमारे यूथ को बताएं कि पैनिक करने की कोई बात नहीं है. वी नीड टू नॉर्मलाइज दिस बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. So let's begin with what actually is puberty, what to expect. Puberty in girls starts around 9 years of age. Sometimes it starts before that, but it is precocious puberty and it's very rare. So normal puberty starts from 9 years of age and it is till 15 years of age. So first few changes are breast starts developing. Girls notice hair growth in axillary area, pubic area, and increase in height, fat deposition at different parts of their body. But the most important thing which girls are not mentally prepared, and we need to help them attain that phase of life smoothly, is the first periods. These days, schools have started with educating girls about periods, because sometimes girls tend to lose their confidence after getting their periods suddenly, because if they are not prepared, they might lose confidence. So the normal age at which girls attain their first periods is between 11 to 14 years of age. These days, the age is reducing because girls are becoming more physically active. So that is normal. These days, the range has been expanded from 10 years to 14 years of age. मैम, किस हद तक ये सच है? बहुत सारी केसेस सामने आए हैं कि यूजुअली गर्ल्स दे हिट देयर फर्स्ट पीरियड और उसके काफ़ी मंथ्स बाद या बहुत देर तक उन्हें नेक्स्ट पीरियड नहीं आता, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है या दे स्टार्ट टेकिंग इट एज अ डिजीज़. उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोगों से डिस्कस करती है, पीपल स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग देम, उन्हें अनटचेबल वाली फीलिंग आती है. तो क्या ये जो केसेस सुनने में आए, इज़ इट नॉर्मल? होता है ऐसा? हाँ जी, ये बिल्कुल नॉर्मल है. देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम आपको पीरियड आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद हर महीने यू स्टार्ट गेटिंग योर पीरियड्स रेगुलरली, क्योंकि ये एक प्रोसेस है. पीरियड्स शुरू होने से लेकर आपके पीरियड रेगुलराइज होने में इट माइट टेक 2 years to 3 years, क्योंकि ये सब हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है. इनिशियली 1 या 2 साल जो फर्स्ट फ्यू पीरियड्स होते हैं गर्ल्स में, उसमें एग प्रोड्यूस नहीं होता है. तो वो जब हमारी बॉडी में एग प्रोड्यूस होने लग जाता है ना हर पीरियड साइकिल के साथ, देन योर पीरियड्स बिकम नॉर्मल, रेगुलर at 1 month interval. So it is absolutely normal to get your periods at later intervals initially. But if you experience this problem 2 साल के बाद भी, then you need to consult your doctor. Right. So अगर 2 साल तक हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं भी, तो दैट इज़ नॉर्मल, जैसे कि आपने कहा. Right, because the egg is not yet developed. Yeah, initially the egg is not forming in every cycle, so you might experience irregular periods. But अगर आपको पीरियड हैवी आ रहा है,
पीरियड रुक ही नहीं रहा है, जिससे खून की कमी होने का भी रिस्क होता है, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए. डॉक्टर विल गाइड यू, एंड इफ देयर इज एनी अदर प्रॉब्लम देन यू कैन बी ट्रीटेड साइमल्टेनियसली फॉर दैट. तो मैम एक तो ये हो गया कि एक बार पीरियड्स आते हैं उसके बाद काफ़ी लॉन्ग गैप आ जाता है और फिर नहीं आते. बट एक और प्रॉब्लम है जो पीरियड्स का इरेगुलर होना, कि वो एक फिक्स डेट पर नहीं आते. लाइक डॉक्टर्स यूजुअली कहते हैं कि नॉर्मल 28 डेज का साइकिल होता है, हर महीने आपको उसी डेट पर आना चाहिए, पर नहीं आते. जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ़ आई टॉक अबाउट सो मेनी अदर गर्ल्स दैट आई नो इन माई फ्रेंड सर्कल, नहीं आते, फ्लक्चुएट होती हैं डेट्स. तो वो इरेगुलरिटी इन पीरियड्स के क्या रीजंस? नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 से 35 दिनों के बीच में होनी चाहिए. बट अगर आपका पीरियड 21 दिन से पहले आ रहा है रेगुलरली, या फिर 35 डेज के बाद, या यू आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट व्हेन यू माइट गेट योर पीरियड्स, तो उस कंडीशन में हमें देखना पड़ता है कि क्या कारण हो सकता है. देखिए, कई कारण हो सकते हैं इसके. सबसे पहले तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है किसी भी प्रकार का, जैसे थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन अगर आपका सही नहीं फंक्शन कर रहा है, थायराइड ग्लैंड, तो आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं. या कई बार ये कंडीशन होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पीसीओडी. इसके बारे में आपने भी सुना होगा क्योंकि काफ़ी कॉमनली यूज़ की जाने वाली टर्म है. कई बार उस वजह से भी आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं. कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं. योर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस इन योर लाइफ, उन सब कारणों से आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं. सो द मोस्ट कॉमन cause which we are seeing these days is polycystic ovarian disease. So उस वजह से कई बार देखा गया है, या फिर थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस की आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं. जैसे कि आपने अभी बात करी पीसीओडी के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा पीसीओडी और पीसीओएस बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप टर्म्स हैं, और जितनी ज़्यादा हाइप है उतनी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में लैक ऑफ अवेयरनेस है. लोगों ने सुना तो हुआ है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स भी हो रहे हैं, बट उन्हें एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि इन टर्म्स का मतलब क्या है और होता क्या है इनसे. तो आई वुड वांट यू टू थ्रो सम लाइट ऑन बोथ दीज टर्म्स. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी ये कोई बीमारी नहीं है. जैसे कि हम सब देखने में अलग अलग दिखते हैं, हमारे सबकी शक्लें अलग हैं ना, उसी प्रकार से हम सबकी ओवरीज भी अलग हैं. कुदरत ने उन्हें सबको यूनिक, एवरीबडी इज यूनिक. सो पीसीओडी ओवरीज आर ऑल्सो यूनिक ओवरीज. इन ओवरीज में क्या, हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा है. तो क्या होता है कई बार कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग कब बनेगा ये प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है. लेकिन ये पीसीओडी ओवरीज में ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये प्रॉब्लम आए कि उसको पीरियड इरेगुलर हो जाएगा. पीसीओडी में जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाए, आपका वजन अत्यधिक बढ़ जाए, आपके चेहरे पे हेयर ग्रोथ हो जाए, या फिर आपके एक्ने हो जाए, हेयर फॉल, ये जब कंडीशंस आ जाती हैं तो उसे पीसीओएस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, हाउ दे एक्सप्रेस इफ द हार्मोन्स इज नॉट अंडर कंट्रोल. सो उस कंडीशन में आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, आपका वेट गेन हो जाता है, एंड ऑल्सो इट्स अ विशियस साइकिल. वजन बढ़ जाएगा, पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे, आप स्ट्रेस ले लेंगे और पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे. तो उस कंडीशन में कंसल्ट योर डॉक्टर. अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, कोशिश करें अपना वजन घटाएं, आप एक आइडियल वेट रखें अपनी बॉडी में, थोड़ा डाइट अपनी मॉडिफाई करें, घर का बना खाना खाएं, जंक फूड्स अवॉइड करें, रेगुलर टाइम पर खाना खाएं और संतुलित आहार खाएं, बैलेंस्ड मील लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें. उस कंडीशन में आपके, अगर आप ये सब बातों का ध्यान रखते हैं तो यू कैन रिवर्स पीसीओएस ऑल्सो, एंड यू कैन हैव अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, नॉर्मल पीरियड्स लाइक एनी अदर नॉर्मल गर्ल. तो अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि आफ्टर 20 यूजुअली विमेन दे अटेन अ मैरिजेबल एज, दे यूजुअली गेट मैरिड. तो आफ्टर मैरिज अगर एक लेडी, एक लड़की, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और पीसीओएस, तो उस केस में वो इन चीज़ों से कैसे डील करेगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने. एक्चुअली
अ गर्ल हु ऑलरेडी नोज, दो तरह की गर्ल्स हैं, एक तो हु नोज एंड एक हु डजंट नो कि आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी. सो द वन हु नोज, maybe she is little more aware what problems she can face after getting married. और जिसको पता ही नहीं है वहाँ पैनिक हो जाएगी उसकी फैमिली में कि why she is not getting her periods regularly. इसको periods, people come to us कि मैम इनको तो पीरियड ही नहीं आता है, 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आता है, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी. द मेन कंसर्न what the family has after marriage is बच्चा. How will she produce kids if she is not getting her periods regularly? So ये एक कॉमन प्रॉब्लम आती है. तो इसके लिए कई बार इन्हें एक्सपर्ट हेल्प की ज़रूरत पड़ती है टू गेट प्रेग्नेंट. क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पीसीओडी में क्या होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन. सो इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द एक्चुअल टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. क्योंकि क्या होता है, कुदरत ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि जो एग है वो हमारी बॉडी में सिर्फ 24 आवर्स ही रहता है. अगर उस 24 घंटे में फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होती है. तो दिस इज़ द मेन रीज़न व्हाई फॉर पीपल इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू गेट प्रेग्नेंट विद पीसीओडी. सो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आती है और उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है. पहला तो ये. दूसरा, अगर उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो अनवांटेड प्रेगनेंसी का भी रिस्क है बिकॉज दे कांट प्रिडिक्ट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो सकती हैं. Ma'am, another important aspect that I would like to touch upon is vaginal odor or the different color of vaginal discharge. I really want to know that whether is it good for our body or is it bad for our body. ये भी एक myth breaking issue है जिसके बारे में आज तक बात नहीं हुई है. Everybody has a specific odor, but if it should not be foul smelling and if there is any change in odor, okay, and discharge also, transparent vaginal discharges are common. They are physiological discharges because of different hormonal changes we are going through during our menstrual cycle. Consistency, color of discharge and amount of discharge, it varies from first day of menstrual cycle till you get your periods. मैम, जैसे कि अब हमने बात करी मैरिजेबल एज की, सो नाउ इट्स द टाइम टू कंसीव. अब हम प्रेगनेंसी की तरफ जाते हैं तो एक बड़ा ही हॉटली डिबेटेबल टॉपिक है दैट सी सेक्शन इज पुटिंग वुमेन्स लाइफ एट रिस्क. हाउ ट्रू इज इट? It's absolutely false. First and foremost, what I want to say is, देखिए, if a woman get pregnant, then one thing is for sure that she will have to deliver the baby. She can't keep the baby inside. Okay. So the modes of delivery then comes, how to deliver the baby. So every doctor, every obstetrician prefers that first time mother should deliver normally. We all want everybody should deliver normally because nobody is, I would say, too posh to push. So we prefer normal delivery unless it is medically not indicated in her, contraindicated in her case. So that is a separate topic altogether. So if a low risk patient is pregnant for the first time, we prefer normal vaginal deliveries for them. But our ultimate goal of delivery is healthy mother and healthy child. We can't compromise either of the two. Cesarean section is an absolutely safe procedure. Cesarean sections are not putting mothers at risk. That I want to clear to all of you. But these days, there is definitely a rise in cesarean section rate. There are different factors for that as well because of the delayed age of marriage, delayed age of conception, delayed conception leading to different comorbidities during pregnancy, and the pregnancy itself becomes high risk. And sometimes people are also opting for cesarean section. So these are the different reasons because of which there is rise, but there is no additional risk to mother with cesarean delivery. मैम, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में पता ही नहीं है. दे हैव दिस कन्फ्यूजन इन देयर माइंड सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में. तो आई वुड वांट कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्क्राइब करें. देखिए, पहले ऐसा होता है, नॉर्मली भी ऐसा होता है कि हर किसी को ये है कि
प्रेग्नेंट हुए हैं तो डिलीवरी तो होनी ही है, ये सबसे बड़ा सत्य है कि प्रेगनेंसी होती है तो डिलीवरी भी होनी ही है। और डिलीवरी किस तरीके से हो, ये फियर है बहुत बड़ा दिमाग में। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि सिजेरियन सेक्शन के रेट थोड़ा सा सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा, पहले के कंपैरिजन में देखा जाए तो सिजेरियन बर्थ ज़्यादा होने लगे हैं। पर इसके बहुत सारे कारण हैं आजकल। एक तो डिलेड मैरिजेस हो रही हैं, जिस वजह से प्रेगनेंसी भी लोग काफ़ी डिले करते रहते हैं ना, तो प्रेगनेंसी भी डिलेड हो रही है। और प्रेगनेंसी, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। जो हेल्दी फीमेल्स है, दे आर एबल टू कंसीव, दे आर ओनली गेटिंग प्रेग्नेंट। सो प्रेगनेंसी इज ए इंडिकेटर दैट यू आर वन ऑफ द हेल्दीएस्ट पर्सन। सो जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं आजकल, तो विमेन, पहले की औरतें काम वगैरह करती रहती थी, आजकल प्रेगनेंसी में एब्सोल्यूट बेड रेस्ट कर रही हैं औरतें, अच्छी डाइट ले रही हैं, डिलेड एज है, तो कई बार ये बच्चे का वजन इतना हो जाता है या पेन थ्रेशोल्ड नॉर्मल पब्लिक का काफ़ी कम हो गया है, तो सिजेरियन डॉक्टर्स की तरफ से नहीं, पेशेंट्स की तरफ से ज़्यादा डिमांड आने लगी है इस चीज़ की। कई बार पेशेंट नहीं बियर कर पा रहा है पेन। एक और हॉटली डिबेटेबल क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, दैट बर्थ कंट्रोल पिल्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। किस हद तक सच है ये? बर्थ कंट्रोल पिल्स, दे आर नॉट हार्मफुल, देर आर सर्टन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हम वो एडवोकेट नहीं करते हैं। जैसे अगर किसी महिला को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है कुछ एक प्रकार के कैंसर्स की, या उम्र आपकी ज़्यादा है, उन कंडीशंस में हम कहते हैं कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवॉइड करें, बिकॉज दे कंटेन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सो उनके कुछ मेडिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। अगर किसी महिला में कोई मेडिकल कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, देन दे कैन यूज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स विदाउट एनी फेयर। दे आर एब्सोल्युटली सेफ। और उनमें अगर आप जब बच्चा चाहें तो फर्टिलिटी रिवर्सल भी तुरंत होता है। So they are one of the best and safest contraceptive available. So ma'am, now I would want to talk about cervical cancer. पूनम पांडे की बहुत ही फनी सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी that she died of cervical cancer. So I really want you to tell us कि cervical cancer होता कैसे है, what does this term actually mean, इसके क्या symptoms हैं और हम इसे कैसे avoid कर सकते हैं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर ये होता क्या है? सर्विक्स जो होता है वो बच्चेदानी का मुंह होता है। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर इज़ 100% प्रिवेंटेबल। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका बचाव संभव है। बट अगर आपको सर्वाइकल कैंसर हो जाए तो ट्रीटमेंट कई बार मुश्किल हो जाता है, और अगर एडवांस स्टेजेस में हो तो शायद ट्रीटमेंट पॉसिबल भी नहीं है। पर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और भारत सरकार ने मुहिम चलाई हुई है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम। अब इसमें स्क्रीनिंग है एक तो कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और ट्रीटमेंट हो जाए, दूसरा है प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। फॉर प्रिवेंशन वी हैव वैक्सीन अवेलेबल इन मार्केट। सो हम ये सलाह देते हैं कि 9 साल से ऊपर की लड़कियां सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवा के अपने आप को इस कैंसर से बचा सकती हैं। सो फॉर प्रिवेंशन वी हैव सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स अवेलेबल, HPV वैक्सीन्स अवेलेबल विद अस। बट अगर किसी कारणवश आपने वैक्सीन नहीं लिया, या आपको लगता है कि मैम आई कुड बी एट रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो इसके लिए पैप्समियर नाम का एक OPD टेस्ट होता है, जो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, या हर प्राइवेट हॉस्पिटल में इजीली अवेलेबल टेस्ट है। आप ये जाकर करवाएं। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हर 3 से 5 साल में आप रिपीट करवाते रहें, तो इससे आपका कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। मैम, एक एवरेज वुमेन और अ लेडी, उसे कैसे पता लगेगा, क्या वो सिम्टम्स होंगे जिससे उसे समझ आएगी कि आई हैव बीन हिट बाय सर्वाइकल कैंसर? देखिए, सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो बहुत जल्दी अपने लक्षण दिखाती है। सर्वाइकल कैंसर जिन महिलाओं में होने का रिस्क होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं कि
आपको बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज, डर्टी वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, अनयूजुअल, जो पहले नहीं था। दूसरा, इट इज़ फाउल स्मेलिंग। तीसरा कि आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्लीडिंग। सो ये सब कुछ लक्षण हैं जिनमें आपको तुरंत अपनी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। मैम आई फील कि बहुत से लोगों का ये नोशन है कि जो वैक्सीन है इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। सो व्हाट्स योर से ऑन दिस? इफ़ नॉट वैक्सीन तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है इन द मार्केट? कि वैक्सीन का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, मेंटेनिंग हाइजीन कैन ऑल्सो प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। मैम एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। अ लॉट ऑफ women हु फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 50 ईयर्स, उन्हें यूट्रस रिमूवल के लिए कहा जाता है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? वाई इट शुड बी डन? व्हेन इट शुड बी डन? और कितना सेफ है ये? यूट्रस रिमूवल की जो सर्जरी है, इसके इंडिकेशंस हैं कि क्या तकलीफ है। एक तो जो महिला है उनको क्या तकलीफ है, कितनी तकलीफ है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी वर्सन हो रही है उससे, या कई बार एक प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है जो आगे जाके फ्यूचर में भी कोई कैंसर या कोई और बड़ी बीमारी बन सकती है, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, खून की कमी हो रही है, डे टू डे लाइफ सफ़र हो रही है उनकी। उन कंडीशंस में हम यूट्रस रिमूवल सर्जरी के लिए एडवोकेट करते हैं, विमेन को एडवाइस करते हैं। अब यूट्रस रिमूवल सर्जरी किस प्रकार की होती है, क्या होती है? इट कुड बी डन बाय 3 मेथड्स। सबसे पहले तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी कहते हैं, जिसमें पेट पे चीरा लगा के होती है। दूसरा लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कहते हैं, और तीसरा है वजाइनल हिस्टेक्टमी। वजाइनल हिस्टेक्टमी उन पेशेंट्स में इंडिकेटेड होती है जिनमें बच्चेदानी बाहर आ रही हो या शरीर बाहर आ रहा हो, उसका तो इंडिकेशन ही डिफरेंट है। बाकी ये जो एब्डोमिनल एंड लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमीज जो हैं, दोनों एकदम सेम प्रोसीजर है, बट जो लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी है वो दूरबीन के जरिए से करी जाती है। उसमें पेट पे कोई चीरा नहीं आता, तो पेशेंट के लिए बेहतर होती है ये दूरबीन वाली हिस्टेक्टमी। पर हर प्रकार के हिस्टेक्टमी के बाद पेशेंट को हम तीसरे दिन घर भेज देते हैं, और लगभग 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के रेस्ट के बाद वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकता है। और जो इसका बेनिफिट उनको हो रहा है कि जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले डिस्टर्ब थी, जो उनको खून की कमी हो रही थी, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी, वो सब प्रॉब्लम से उनको निजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है। सो यूट्रस रिमूवल की सर्जरी अगर सही इंडिकेशन के लिए करी जाए तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर विमेन हु आर सफरिंग फ्रॉम दीज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। आप तो अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इस तरह के केसेस हैंडल कर सकते हो, तो ऐसा कोई केस जो आप डिस्कस करना चाहोगे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था बट यू हैंडल्ड इट विद ईज एंड वेरी स्मूथली? हाँ, चलिए इस पर मैं अपना एक केस आपको बताना चाहूँगी। जैसे अभी बताया मैंने आपको कि पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, ऐसी एक 45-46 ईयर्स ओल्ड फीमेल, शी केम टू मी विद कंप्लेंट ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, और ब्लीडिंग दवाई लिए बिना रुकती ही नहीं थी। तो उस महिला का हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, MRI करवाया, तो उसमें उसके काफ़ी बड़े बड़े, लगभग एक क्रिकेट बॉल जितने 2-3 फाइब्रॉइड्स, मतलब 10 से 12 सेंटीमीटर के 2-3 फाइब्रॉइड्स आए। लगभग आप मानिए 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी जितना उसके यूट्रस का साइज था, और उनमें खून की भी बहुत कमी थी। मतलब वो अपना डेली का काम भी नहीं कर पा रही थी, स्टेयर्स चढ़ना, घर के काम करना, अपना रूटीन एक्टिविटी कर पाना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा था। फिर उनको हमने खून चढ़ाया पहले तो, क्योंकि किसी भी सर्जरी से पहले हम चाहते हैं कि मरीज़ फिज़िकली और उनकी बॉडी फिट हो कि वो सर्जरी को विथस्टैंड कर सके। खून चढ़ाया पहले, उनकी सर्जरी करी, हिस्टेक्टमी सर्जरी करी हमने। उसके 2 दिन बाद तीसरे दिन हमने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। आज लगभग 2 साल हो गए हैं उनकी सर्जरी को, बट शी इज़ वेरी हैप्पी एंड लिविंग हर लाइफ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, व्हाट आई एम सेइंग इज, पेशेंट हमें आकर कहते हैं कि मैडम मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है इस सर्जरी के बाद,
एंड मैं पिछले 3-4 सालों से सह रही थी, झेल रही थी इस प्रॉब्लम को. एवरीबडी वॉज अराउंड हर वॉज सेइंग कि मेनोपॉज हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा. बट what I told that patient that she will never attain menopause with so many problems. So hysterectomy was the only solution for her, and she's very happy. So what we want, what is our aim with this is to make people aware that if you are having any problem, consult your doctor, get the treatment, and just improve your quality of life. Ma'am, my next question. It's a little funny, a little weird, the vaginal tightening trend. In your opinion, is it an exploitation or is it an empowerment? Vaginal tightening trend. It's a recent thing which has come up these days. I would say every woman has right to decide for herself. अगर ये एक महिला की choice है, then it is empowerment. Right. If she is forced upon by her partner, husband, or anybody, then I would say it is exploitation. It should be her own choice to go for vaginal tightening. If she wants, she can. It is a safe procedure, safe thing. मैम, एक और मिथ है जो कि ब्रेस्ट साइज को लेकर है. लाइक एवरी वुमेन इन दिस वर्ल्ड दे हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ ब्रेस्ट, राइट? तो लोगों को लगता है कि अगर मेरी ब्रेस्ट बड़ी है या मेरी ब्रेस्ट छोटी है या इट्स नॉट ऑफ द एग्जैक्ट एप्ट साइज, तो मे बी दिस इज सम सॉर्ट ऑफ डिजीज. तो क्या कोई एप्ट साइज होता है? No, nothing like that. देखिए, we are all different. We are all unique in our own way. Your breast size changes and have different appearances during different phases of your life. So you can work upon yourself, but you can't change it. So it is genetically predetermined, and it is absolutely normal to have different sizes, shapes, and asymmetry also. So ma'am, now we finally come to the end of a women's life cycle. हमने उसके बर्थ से लेकर, प्यूबर्टी से लेकर, मैरिज से लेकर, प्रेगनेंसी से लेकर सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करा. अब एक बहुत ही क्रूशियल टर्म है जिसे कहते हैं मेनोपॉज. सो आई वुड वांट यू टू टॉक अबाउट मेनोपॉज. और आजकल काफ़ी केसेस सुनने में आ रहे हैं कि जैसे मेनोपॉज की पहले एग्जैक्ट एज ग्रुप जो मेनोपॉज का होता था वो होता था आफ्टर 45 और 50, पर आजकल मेनोपॉज जल्दी भी हो रहा है. तो हाउ सेफ इज़ इट एंड व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? देखिए, मेनोपॉज की जो नॉर्मल एज हम देखते हैं वो 45 से 55 ईयर्स के बीच में मानते हैं. बट मेनोपॉज या पीरियड का बंद हो जाना ये एक it's not a one-day thing. Menopause is also a process which is perimenopausal period, which ranges from 2 to 5 years. Like you were asking about menopause occurring early these days. It is because of the lifestyle, I would say, that people are attaining menopause early, their diet, their lifestyle, which is, I think, harming women population these days. So attaining menopause before 40 years of age is labeled as premature menopause. The problems which women face after menopause, they will start experiencing at early age. So, which is not good for women's health. So, early menopause is because of their lifestyle, and menopause is also genetically predetermined thing. If it runs in your family. The day you're born, it is determined when will you attain your menopause. During perimenopausal period, what actually happens is, जैसे देखिए पहले जो पीरियड हमें हर महीने रेगुलर आ रहा था, 3 से 4 दिन की ब्लीडिंग होती थी. जब आप इस एज में पहुंच जाएंगे टुवर्ड्स योर मेनोपॉज, ड्यूरिंग योर पेरीमेनोपॉजल पीरियड, जो पीरियड है आपको हर महीने की जगह 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के इंटरवल पर आएगा. और जो फ्लो पीरियड का फ्लो आपको 3 से 4 दिन, 5 दिन होता था, वो फ्लो भी कम हो जाता है. धीरे धीरे ड्यूरेशन 1.5 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और साल हो जाता है 2 पीरियड्स के बीच में. When there is a absolute amenorrhea of 12 months, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं. ऐसा नहीं है कि हम सोकर उठेंगे और आज मेरा मेनोपॉज हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. It's a process, and when you don't get your periods for 12 subsequent months, then you are labeled as a menopausal lady. So this is the normal. Your duration between 2 periods increase and the flow decreases gradually, and subsequently you attain your menopause. This is normal. But
everybody is not blessed, to attain a normal menopause like this. So what problems women face during this period? कई बारी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आने लग जाती है, कई बारी 2-2, 3-3 महीने पे तो आता है, लेकिन फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो we have to counsel women that it is normal, just accept it, and you may in near future attain menopause. Thank you so much, Jyotika ma'am. You very well and beautifully explained all the stages of a woman's life cycle. Thank you so much. I had a wonderful time interacting with you, and it was so good to have you on our show. Thank you so much, and the pleasure is all mine. So stay tuned for yet another episode of Health Humsafar series. This is your host Sneha Singh, officially signing off.